बीते 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकी हमले के बाद जिस गाजा का बाजा बजाया था, उस गाजा पर अब अमेरिका का कब्जा होगा। हमास आतंकियों की जगह अब अमेरिकी फौज की तैनाती होगी। इसका ऐलान खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में खड़े होकर किया है। इस दौरान उनके साथ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी मौजूद रहे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका दौरे के दौरान ओवल ऑफिस में हुई बातचीत और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें की वो अब सामने आ चुकी हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ट्रंप ने अब खुलकर कह दिया है कि अमेरिका गाजा पर कब्जा करने के लिए तैयार है। उनके इस बयान पर जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि क्या वे अपने इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए अमेरिकी सेना की मदद लेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर जरूरत पड़ती है तो मिलिट्री एक्शन से भी पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया कि अमेरिका किस कानूनी आधार पर गाजा में ऐसा कदम उठा सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ट्रंप गाजा पर क्यों कब्जा करना चाहते हैं? ऐसा करने के पीछे अमेरिका का आखिर क्या मकसद हो सकता है? क्या अंतरराष्ट्रीय कानून ऐसा करने से ट्रंप को रोक पाएंगे? सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले सुनिए ट्रंप ने क्या कहा। The Palestinians want to go back to Gaza is they have no alternative. It's right now a demolition site. This is just a demolition site. Virtually every building is down. They're living under fallen concrete that's very dangerous and very precarious. They instead can occupy all of a beautiful area with homes and safety, and they can live out their lives in peace and harmony instead of having to go back and do it again. The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. Do a real job, do something different. Just can't go back. If you go back, it's going to end up the same way it has for 100 years. We'll take some questions afterwards. Thank you very much. Mr. President, given what you've said about Gaza, did the U.S. send troops to help secure the security vacuum? As far as Gaza is concerned, we'll do what is necessary. If it's necessary, we'll do that. We're going to take over that piece, and we're going to develop it, create thousands and thousands of jobs, and it'll be something that the entire Middle East can be very proud of. But everybody feels that continuing the same process that's gone on forever, over and over again, and then it starts, and then the killing starts, and all of the other problems start, and you end up in the same place, and we don't want to see that happen. So by the United States, with its stability and strength, owning it, especially the strength that we're developing and developed over the last fairly short period of time, I would say really since the election, I think we'll be a keeper of something that is very, very strong, very powerful, and very, very good for the area, not just for Israel, for the entire Middle East. Very important. And we'll again have thousands of jobs, and there'll be jobs for everyone, not for a specific group of people, but for everybody. Okay, please. गाजा पर अमेरिका की कंट्रोल वाले ट्रंप के बयान को कई लोग फिलिस्तीनियों को गाजा से बाहर करने की मंशा के रूप में देख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जॉर्डन, मिस्र और अन्य अरब देशों ने फिलिस्तीनियों को अपने यहां बसाने की ट्रंप की अपील को सिरे से खारिज कर दिया है। मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, फिलिस्तीनी अथॉरिटी और अरब लीग ने संयुक्त बयान जारी कर इस स्कीम की आलोचना की है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने ऐसा कोई कदम उठाया तो ये पूरे क्षेत्र की स्थिरता को खतरे में डाल सकता है, संघर्ष को और बढ़ा सकता है। ट्रंप गाजा पर कब्जा क्यों चाहते हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेस्ट एशिया में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी को स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं ताकि ईरान और अन्य विरोधी ताकतों पर नजर रखी जा सके। इजराइल के कट्टर समर्थक रहे ट्रंप की कोशिश यही होगी कि इस इलाके में इजराइल को डिप्लोमेटिक मान्यता दिलाने में अमेरिका का रोल और मजबूत हो। अगर अमेरिकी फौज यहां बनी रहती है तो इससे इस मकसद को और ताकत मिलेगी। इसके साथ ही मिडिल ईस्ट एनर्जी रिसोर्सेज का सेंटर है। गाजा पट्टी में भले ही बड़े तेल भंडार ना हो, लेकिन इस एरिया में स्थिरता से अमेरिका को इनडायरेक्टली फायदा होता है।
खासकर ईरान, रूस और चीन को कमजोर करने के लिहाज से ये महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। क्या ट्रंप ऐसा कर पाएंगे? इसका जवाब है नहीं। अंतरराष्ट्रीय कानून किसी भी आबादी को जबरन विस्थापित करने पर सख्त पाबंदी लगाता है। गाजा पहले से ही उन फिलिस्तीनियों का घर रहा है जो इजराइल के निर्माण के दौरान हुए युद्धों में बेघर हुए थे या जबरन हटाए गए थे। डोनाल्ड ट्रंप की योजना अगर लागू होती है तो इसका मतलब होगा कि इन फिलिस्तीनियों को अरब दुनिया या उससे भी दूर कहीं और भेज दिया जाएगा। ये योजना न सिर्फ टू स्टेट सॉल्यूशन की संभावना को पूरी तरह खत्म कर देगी, बल्कि इसे अरब जगत और फिलिस्तीनियों की डिपोर्टेशन प्लान या एथनिक क्लेंजिंग के रूप में देखा जाएगा। हालांकि जिनेवा कन्वेंशन के तहत कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में पॉपुलेशन ट्रांसफर की परमिशन दी जा सकती है, जैसे कि अगर नागरिकों की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो या सैन्य कारणों से ऐसा करना जरूरी हो। इसके अलावा युद्ध बंदियों को वॉर जोन से दूर ले जाकर डिटेंशन सेंटरों में रखा जा सकता है, लेकिन ये केवल सिक्योरिटी या सैन्य जरूरतों के आधार पर ही हो सकता है। आपको बता दें कि ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने ग्रीनलैंड खरीदने की मंशा जाहिर की थी, पनामा और कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बनाने की बातें कही थी। अब सवाल उठता है कि क्या गाजा को लेकर उनकी ये योजना महज एक और विवादित बयान है या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति छिपी है।